अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और लेकिन स्पेशल एपिसोड के साथ। स्पेशल इसलिए कि आज दो बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ शो में मौजूद होंगे और कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से पहले सेगमेंट में बात करेंगे जिसमें ओवरसीज़ वॉरियर के वो खिलाड़ी जिनकी ट्वीट से पूरी दुनिया में कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से जो है वो बातचीत हुई, हर्षल गेव्स हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। इसके साथ पाकिस्तान फुटबॉल पर बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ा अहम पहलू आपको पता है कि आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट शुरू हो रहा है। तो पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि पाकिस्तान टीम की तैयारी कैसी है, कप्तान बाबर आजम का क्या कहना है। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके हर्षल गेव से बात करते हैं। So हर्षल गेव is with us. He is in Muzaffarabad right now. Harshal, thank you so much for joining and glad to see you in Pakistan. You are in Muzaffarabad right now. Tell us something about the beauty of Muzaffarabad when you reach there. And lot of players they actually ask about, lot of players actually talk about the beauty of Muzaffarabad. Then they are talking about the cricket. The same for you. Yeah, it's my first time here in this region, and it's absolutely fantastic. You know, it's just a fantastic location. The venue itself is awesome. Yeah, I mean, it's if you've been to Switzerland, you can understand the similarity between here and Switzerland. It's very similar, deep valleys and the mountain tops, etc., etc. Really stunning. And one of the best locations, you know, I've been lucky enough to be to, or you know, to reach with regards to, you know, the cricket, all the places that I've been to. So very privileged and lucky to be here and enjoying this couple of days with in the KPL. And as you tweeted before the Kashmir Premier League, someone tried to stop you, but we are very happy that you are in Pakistan right now. You reached there. So what was that, Harshal? Your tweet actually gave a lot of hype to this league. Even the KPL chairman spoke in my show. He said that he will be thankful to first Harshal and then the BCCI because of them this league been publicized in all over the world. So Harshal, you played a very major role in the marketing of this league. I think you will be aware of your tweet power. What happened after that? Yeah, look, it's unfortunate, you know. I mean, you know, with regards to the BCCI, I was, because what had happened was that Jay Shah had sent a letter to, obviously, to Graham Smith, who's the director of cricket, obviously, in South Africa, and he passed the message on to me. And I was exceptionally, you know, very surprised at when I got it. You know, I've been traveling to cricket countries and regions all over the world, you know, to either to play or to coach without interference from CCI, and this is the first time that they interfered, you know, and I, in a lot of ways, was disappointed. You know, I've made a lot of friends in India. You know, I've made a lot of friends, obviously, in Pakistan. You know, for me, it's about cricket. It's got nothing to do with politics with regards to me. Like I said in my tweet, you know, I am my own boss, self-employed. So where there's an opportunity and I feel that, you know, I can benefit from or add value to wherever I go, you know, those are the opportunities I'm going to take, seeing that I'm self-employed and my own boss. And yeah, and like I said, it's disappointing that the BCCI felt that they should intervene. But I'm, on the other hand, you know, like I said, I'm my own boss, and you know, I'm self-employed, so I'm very happy that I went through with the decision, and I hope this league grows from strength to strength. It's the standard has been fantastic. You know, the entertainment on show has been fantastic too. You know, so and you know the league now, I think obviously towards the first, you know, round robin games, it's starting to hot up now. So very impressed with the talent on show. So everything has been fantastic. You know, like I said, it's a wonderful location, and like I said, very happy to be here. All right. So can you tell please something about what was your response to Graham Smith then? Obviously, Cricket South Africa being a very, very good supporter for Pakistan cricket over the years. Pakistan team recently visited there, and obviously Graham Smith and a lot of players, especially I remember a lot of players from South Africa was travelled to Pakistan with the World 11 as well. So what was your reply to Graham Smith then? Well, when I was, like I said, I was surprised, but you know, I've got no jurisdiction or affiliation to Cricket South Africa anymore. So, like I said,
I don't have to answer to anybody. When Graham gave me the letter, like I said, I didn't even discuss it with him because, you know, I'm my own boss, so I don't need it. I didn't need to discuss anything with him. All right. But yeah, I mean, he, you know, I wouldn't say he was. I think he found it a little bit funny as well. I wouldn't say funny. Maybe also a bit surprised, but I didn't. You know, I probably spoke to him for about 2 minutes. You know, he sent me the letter, and that was it. I didn't speak to him again after that because, like I said, I've got no contract with Cricket South Africa, no affiliation. You know, and I do as I please. So his response at the end of the day was nothing to do with anything. You know, he just showed me the letter. That was it. All right. So along you were many 4 or 5 players from England, and obviously Tilakarathne Dishan from Sri Lanka. He unfortunately not here because of for logistical reason, I guess. But a player like Monty Panesar tweeted, and then he gave the interview that he then obviously opted not to play in Kashmir Premier League, and he said that in future maybe I got work from India, and maybe if I went to Kashmir Premier League, I have to face the consequences of that. So now you are in Pakistan, you are representing Overseas Warrior, you are part of Kashmir Premier League. So Harshal, this is not the easiest decision, I think, because fair to say that India and IPL is the biggest market right now in the world, and obviously they have a lot of money as well. So can we say that you sacrifice maybe your future contracts, and as mentioned by Monty Panesar, the consequences of playing in India will be the bigger one. So I think that is something definitely went through your mind as well. Yeah, I mean, obviously every every action has a reaction. You know, whatever happens in the future happens. You know, like I said, I'm my own boss, and you know, I make my decisions and I live with the decisions I make. Like I said, it's disappointing that it's not me that had issues coming here. It was obviously the BCCI had an issue with overseas players coming to support this league. They are the ones that brought the politics into it. You know, I mean, I've been to every other country with regards to my cricket, and they haven't intervened. So, you know, from me, whatever happens in the future happens. You know, I'm just I support the cricket, and that's it. I mean, I don't look into any politics. I'm not interested in politics. I'm here for cricket, and that's how it's going to be for as long as I can either play or coach cricket. I mean, it's strictly cricket, and like I said, there's some great talent here, and I'm very happy that the KPL have given the locals an opportunity to show their talent off here. So, I will say it again. I hope this league keeps on growing, and they've made a wonderful start, and the first season has been fantastic. वक्त तो है पुरान में एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुश आमदेद। My last question, and we move on to obviously on Kashmir Premier League and the Overseas Warrior, your team, and obviously their chances in the tournament. But last question on this topic, many people are definitely saying, and in my opinion as well, that maybe you may lost the potential contracts in Indian Premier League, or maybe in any capacity with Indian media, Indian cricket. So that is something you are thinking right now, or you say no, just going with the wind, whatever happen, it will see. I will see. Yeah, I mean, what can I do? You know, like I said, it's you know, I find it disappointing that they've felt the need to intervene. You know, I've got no affiliation, or I've got no or contract with anybody. You know, as I said, I go as the crow flies, you know, and that's it. Whether or not I have opportunities again in India, you know, it'll be disappointing if they don't allow me entry or to work there. But what can I do? You know, there's a lot of other cricket around the world, and I know that I can add value with regards to my experience and my coaching capabilities
anywhere in the world. All right. So Harshal, you were with Karachi Kings for the last 2 seasons, and now you with Overseas Warrior. I'm sure you heard, you maybe know some Urdu words as well. Can you speak a bit of Urdu? No, unfortunately not. I think I'm obviously before the next PSL. I might have to brush up on my Urdu, but at this stage, I don't know anything really. Okay, your league honor, Mr. Zakir, the honor of the Overseas Warrior is with us, but he will definitely talk some Urdu for our Urdu viewership in Pakistan right now. So Zakir साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. मैंने बहुत सारी बातें की हर्षल गिब्स से. उन्होंने बताया कि किस तरह हम पे दबाव डाला गया, बट उन्होंने फिर बड़ी खुशी का इजहार किया कि वो मुजफ्फराबाद आए हैं, वो यहाँ पर आकर बहुत खुश हैं. तो जाकिर साहब, आई थिंक बतौर टीम ऑनर जिसकी टीम में हर्षल गिब्स हैं, आई थिंक यू विल बी वेरी प्राउड के हर्षल गिब्स सारी सिचुएशन में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को, इस लीग को, आपकी टीम को सपोर्ट किया और उनकी यहाँ मौजूदगी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. सही बात है. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो हर्षल गिब्स की बहुत बड़ी मेहरबानी है, और सबसे बड़ी बात है कि उसने जो क्रिकेट के लिए काम किया है ना, ये क्रिकेट की प्रमोशन के लिए काम किया है, और उन्होंने यही हमेशा मैसेज यही दिया था कि मैं क्रिकेटर हूँ और क्रिकेट की प्रमोशन के लिए काम कर रहा हूँ. वॉट एवर में मेरे को कहीं पे भी जाके खेलना पड़े, जहाँ पे क्रिकेट होगी, जहाँ पे क्रिकेट डेवलप हो रही है, तो मैं उसके लिए सर्विस भी दे सकता हूँ. बिल्कुल. और यकीनी तौर पर उनकी यहाँ मौजूदगी से आपकी टीम को भी बड़ा बूस्ट मिला होगा, बल्कि मिला है. आप एक तो ऑब्वियसली इतने बड़े स्टार हैं कराची किंग्स के लिए, उन्होंने टाइटल भी जीता पिछले सीज़न में, और अच्छी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को समझते भी है. तो ये तो बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव है उन यंगस्टर्स के लिए, स्पेशली जो कि टीम में मौजूद हैं, कि हर्षल गिब्स उनको ज्वाइन करेंगे और उनके साथ वक्त गुजार रहे हैं. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें. देखिए, हमारी टीम में तो ऑलरेडी देखिए इमाद वसीम है, जो आपको पता है कि इनकी ट्रेनिंग के अंदर ही उनके साथ उनकी जी कराची किंग्स के कप्तान है ना. अच्छा, इसके अलावा कप्तान हमारे पास है. इसके अलावा जितने भी कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के लड़के हैं या दूसरे लड़के हैं, उनको बहुत बड़ा एक चांस है ये सीखने का, लर्न करने का. एक प्लेटफॉर्म दिया है KPL ने उनको, और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. और इतना बड़ा नाम हर्षल गिब्स, आपको पता है माशाल्लाह से जो इनकी परफॉर्मेंस रही है और साउथ अफ्रीका के लिए, तो ये सब चीजें देखनी है और ये लड़कों को इससे फायदा उठाना चाहिए, जितने भी लड़के हैं. ठीक है. So Harshal, your team owner is very happy, Mr. Zakir, that you are here, and he is delighted to have you, because not only because of his team and Kashmir Premier League, but obviously the youngsters you guys have in your team. So Harshal, you get a chance to meet the young players, especially from the Kashmir region, because this is the first time ever the big cricket tournament happening in this beautiful Muzaffarabad event. So you meet the young players. What is your views on the cricketers you met, especially from the Kashmir region? Yeah, like I said, I've been impressed so far with what I've seen. Especially the bowling stocks. I can't believe that Pakistan continues to churn out bowlers year after year, season after season, and league after league. You see these quick bowlers just emerging, these young quick bowlers, which is an unbelievable thing. I mean, we don't even have stocks, in fast bowling category like this in South Africa. So, not only obviously the batting as well. So, like I said, I mean, the more these leagues can start up, the talent comes to the fore, and it's a wonderful opportunity to find talent. And yeah, I mean, the Overseas Warriors is, I'm very lucky and privileged to be part of the setup and in the team. And yeah, we're going nicely. We managed to make a little turnaround last night, a great win, and hopefully, we can get some momentum now and win the next 2 games, and then obviously qualify for the playoffs. But yeah, like I said, very impressed with what I've seen, and as a coach, it's very pleasing to see. So, like I said, long may it last. All right. So Harshal, you being associated with Karachi Kings, and now you are here with Overseas Warrior in the Kashmir Premier League. So I think you have a very better idea about when obviously the next draft of the PSL 7 will be held. So you have a lot of players you are witnessing right now in Kashmir Premier League. So I think this is going to help you not only, I think, in the both ways, as a coach of Karachi Kings and being the Overseas Warrior. Maybe Harshal, God knows. In the future, you will be the coach of Pakistan team because of that reason, because you are associated with the 2 teams and you are knowing so much about Pakistan cricket. So maybe, Harshal, in the future, you never know. I mean, if I was to
become the coach of Pakistan, I'd have to brush up on my Urdu. So that's not going to happen for a while. But for now, I'll just concentrate on trying get Karachi Kings or Overseas Warriors to to the title, and that's my main objective for now. Right. So, Mr. Zakir, I shall now move on to Zakir for another question. Zakir भाई, जो यकीनी तौर पर हर्षल से मैंने बात की कि कराची किंग्स के साथ तो एसोसिएटेड हैं और बिल्कुल ओवरसीज वारियर, तो आई थिंक ये तो सबसे बड़े इस वक्त आई थिंक डैरन सैमी पेशावर ज़ल्मी के साथ रहकर, और यहाँ पर ऑब्वियसली अब हर्षल गिल भी वही इनकी वैल्यू बनती जा रही है। सो मैं तो इनसे कह रहा था कि कोई पता नहीं कि फ्यूचर में इतना आप पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, दो लीग्स में इन्वॉल्व हैं, क्या पता पाकिस्तान के बैटिंग कोच बन जाएं, क्या पता आगे चल के हेड कोच बन जाएं, ये कुछ भी हो सकता है। देखिए गफ्फार, बात दरअसल ये कि इस वक्त ना देखिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है इस पर इतना लोगों को फोकस नहीं होता। अब ये जो लीग्स हो रही है ना, एक जैसे PSL है या कश्मीर लीग है, अब इसमें से लड़के पिक किए जाते हैं और इसी में से लड़के पिक हो रहे हैं और जो परफॉर्मेंस पे दे रहा है वो आगे जा रहा है। और ये जो देखें दोनों टीमों के कोच हैं, है ना, यहाँ पे एज ए प्लेयर खेल रहे हैं, वहाँ पे एज ए कोच खेल रहे हैं, तो ये दोनों उस टीमों को सपोर्ट करेंगे इन फ्यूचर जाके ना कि भाई ये लड़का पिक करना है, ये लड़का पिक करना है, इसी तरह ये करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू और ऊपर हो जाएगी। हो सकता है पाकिस्तान टीम के साथ भी आ सकते हैं। जी राकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हर्षल, लास्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली योर मैसेज फॉर योर टीम फॉलोवर्स ओवरसीज वॉरियर, एंड ऑब्वियसली नाउ यू इन पाकिस्तान and now Pakistan Super League officially announced for the January, so a lot of I think will be work will be started for that league as well after this Kashmir Premier League, maybe obviously the preparation of the draft and obviously the decision about which player to retain, which player to release. So your views on both, your message for the Overseas Warrior fans, and then obviously about the Pakistan Super League Season 7 which is scheduled to happen in January. Yeah, look, I mean, as far as the Overseas Warriors is concerned, I think, like I said, the league has made a fantastic start. We are part of the Overseas Warriors. I think as far as the team is concerned, we obviously want to thank the supporters and fans of the Overseas Warriors and ask them to keep on supporting us. They've been great so far, and we really appreciate it because, without the fans, us players, on daily, so thank you very much for the Overseas Warriors and supporters. I mean, they must just keep on supporting us. With regards to Karachi Kings, well, I mean, that's obviously another level up, but there's obviously the prep going into the next draft, etc. That's a bit more complicated, but for now, the focus is on the KPL and making a success of it. Okay, and also one question from one of the fans. Can we expect you to play one of the matches in the Kashmir Premier League for the Overseas Warriors? You are going to play? I can't give it away, but there might be a surprise in the next day or two. Looking forward for this. And Harshal, have a great time in Muzaffarabad. I think you will be. I hope you have a chance to move around in a city along with cricket. So thank you so much and best of luck for you and your team for the Kashmir Premier League. So हर्षल गिल्स, उनके टीम ऑनर मोहम्मद जाकिर हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की उनसे ओवरसीज वॉरियर और कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से। बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जाने से बेपनाह दबाव के बाद हर्षल गिल जैसे एक बड़े नाम ने पाकिस्तान कश्मीर प्रीमियर लीग को और फिर अपनी टीम को बैक किया। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने सीख बात की कि खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए, और इसी मकसद के लिए वो इस मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तान फुटबॉल लीग के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से फाइनली कुछ पॉजिटिव चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान फुटबॉल की। एक ऐसा खेल जो दुनिया में सबसे बड़ा खेल है, जिसका वर्ल्ड कप हो, यूरो कप हो, मेसी का ट्रांसफ़र एक लीग से दूसरी टीम में हो, पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो और जो फैंस हैं उसके पीछे बड़े क्रेज़ी होते हैं, इसकी खबरें कवर करते हैं। बट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की फ़ुटबॉल फेडरेशन ही माशाल्लाह सस्पेंड है। क्या कहें इस सूरत हाल पर। लेकिन एक अच्छी चीज़ होने जा रही है, वो है कि खेल फ़ुटबॉल का दोबारा से ग्राउंड पर कराने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान फुटबॉल लीग
यानी कि हमारी अपनी फ़ुटबॉल लीग इस हवाले से जो है वो काम शुरू हो गया है। आज इस प्रोग्राम के सेगमेंट में आपको डिटेल से बताएंगे और जो इस लीग के CEO हैं ग्लोबल सॉकर वेंचर से भी, और उसके साथ पाकिस्तान फुटबॉल लीग के मामला को ओवरसी कर रहे हैं ज़ेब खान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ेब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ेब, टेल अस समथिंग पॉजिटिव अबाउट दिस पाकिस्तान फुटबॉल लीग जो आप लोग लाना चाह रहे हैं। फाइनली आई थिंक कुछ होप देंगे हमारे फुटबॉलर्स को, फैंस को, कि वो जो सारी जो कंट्रोवर्सी की खबरें वो थोड़ा दूर हों और अब फुटबॉल की खबरें और मैचेस होते हुए देखें। ज़ेब, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ बहुत शुक्रिया आपने जब बुलाया अपने शो पर। बिल्कुल जो है हम एक अच्छी खबर देना चाह रहे लोगों को जो डिज़र्व भी है फुटबॉल के लोगों को, कि हम एक लीग लाने चाह रहे थे, पाकिस्तान फुटबॉल लीग PFL। बेसिकली ये एक फ्रेंचाइज सिटी लीग होगा जिसमें बेसिकली हमारे पास सिटीज़ होंगे PSL की तरह, और उसमें जो है टीम्स बनेंगी, भी एक मैचेस होंगे, लाइव टेलीकास्ट होंगे मैचेस का। अच्छा, मैं थोड़ा सा और आपको बताते चले कि क्या है कि जब हमने ये पूरा एनालिसिस कोई पौने 2 साल से हम इसके ऊपर रिसर्च करें इसको करना कैसे है। मैं खुद जो है ना 12-14 साल से पाकिस्तान फुटबॉल में खुद काम कर रहा हूँ। मैं के इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स हेड भी था, लेजर लीग में भी था, मुख्तलिफ मैंने काम किया फुटबॉल में। पाकिस्तान प्रीमियर लीग भी जीता हूँ 2014-2015 में। तो हमने कहा कि इस लीग को करने के लिए हमें पहले क्या चीज़ की ज़रूरत है। हमने कहा एक प्रॉब्लम वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है फुटबॉल के यहाँ कि आप टूर्नामेंट कराएंगे तो कहाँ कराएंगे। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट करना है तो यहाँ है नहीं। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है सबके लिए कि हम कराची में एक स्टेडियम बनाएंगे इस टूर्नामेंट के लिए, और भी चीज़ भी इस्तेमाल होंगे। इसका वेन्यू हम आगे जाके उसको अनाउंस करेंगे, मगर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वॉज कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वी आर बिल्डिंग, हम एक स्टेडियम बनाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने देखना है कि आपने बड़ी अच्छी चीज़ कहा है कि यार इतने साल से कंट्रोवर्सीज इश्यूज़ ये है, हम इन चीज़ में हमारे इनसे कोई ताल्लुक है ही नहीं। हम क्या कहते हैं, हमारी जो स्टेक होल्डर्स है आपका पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का प्ले, पाकिस्तान का कोच, पाकिस्तान के रेफरी, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स। तो उसके लिए हमने कहा कि हमें अगर इनको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए क्या है, जब तक फंडिंग नहीं आएगी स्पोर्ट में तो आगे स्पोर्ट्स आगे कभी जाएंगे नहीं। रिस्पॉन्स कैसे थे अब तक जब आप लोगों ने ऑब्वियसली अब इस चीज़ की, अब मैंने सोशल मीडिया पे भी कुछ टीजर्स और चीज़ें देखना शुरू की थी। ऑब्वियसली एक मेरा सवाल भी और एक कंसर्न भी है कि चूँकि फुटबॉल सस्पेंड इन पाकिस्तान, ऐसा तो नहीं कि इस वजह से कोई कॉर्पोरेट सेक्टर या स्पॉन्सर कुछ सोच रहे हो, या आपको कैसा रिस्पांस मिला इस लीग के हवाले से? बहरहाल फॉलोइंग तो पाकिस्तान में फुटबॉल की बहुत है। मेसी चाहे बार्सिलोना छोड़ें या PSG जाए, हमारे यहाँ भी उतनी हाइप बनी होती है और लोग उतना इसमें इंटरेस्ट ले होते हैं सोशल मीडिया पे, तो फॉलोइंग तो बहुत तगड़ी है, सपोर्ट आपको मिल रही है जो एक मेन जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसने फंड यहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट करना है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, जिससे भी मिले उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया है, बिकॉज लोगों को नज़र आता है द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान वो फुटबॉल ही है। फुटबॉल 210 ममालिक में खेला जाता है। अगर आप आजकल के यूथ को देखेंगे ना पाकिस्तान में, वो क्रिकेट से ज़्यादा अब फुटबॉल के में उनके रुझान शुरू हो गया। तो हमें अल्लाह का शुक्र है जो हमने कैंपेन स्टार्ट किया, हमें तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी फीडबैक मिला है, और स्पेशली फुटबॉल प्लेयर्स से जो असल स्टेक होल्डर तो वही है, आपके प्लेयर्स जिससे भी बात की उन्होंने कहा ज़ेब वी लव दिस, हम चाहते हैं आप लोग ये करें, बिकॉज एक प्रोफेशनल लीग हो तो 2010 में, मैं ऑब्वियसली उस लेवल पे नहीं था, ये एक डिफरेंट लेवल पे है। उसके थोड़ा सा भी आपको और एक्सप्लेन करूँगा कि एक इसमें इंटरनेशनल एलिमेंट भी है जो PSL में नहीं है। वो ये कि हम लोगों ने मुख्तलिफ फॉरेन क्लब से बात की हुई है, इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी है, डिफरेंट लीग्स में दुनिया में है, टू पार्टनर ईच फ्रेंचाइज। जो मिसाल के तौर पर अगर आप रिस्पांस फ्रॉम दीस क्लब्स, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान एक स्लीपिंग जाइंट है, माशाल्लाह से 220 मिलियन का पॉपुलेशन है। अगर आप कराची को देखें, मेरे ख्याल में 22 मिलियन का पॉपुलेशन इस वक्त पे यहाँ पे है। तो वो जो क्लब्स UK में है प्रीमियर लीग में, जिनकी सिटीज़ में ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी है, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो कहते हैं ये अच्छा एक चीज़ है जिसके साथ हम अपना एक ताल्लुक़ बना सकते हैं कम्युनिटी के साथ, और एक लीग के साथ हम जो है ना अपने अटैचमेंट बनाएंगे। अगर इंडिया को भी देख ले तो मैनचेस्टर सिटी ने एक क्लब में 65% शेयर लिया। और ज़ेब इसका फ़ायदा ऑब्वियसली एसोसिएशन जो है इसका फ़ायदा फिर मुझे जो सजेशन में आ रहा है ऑब्वियसली ये हो सकता है कि उन प्लेयर्स जो वहाँ के बड़े प्लेयर्स होंगे, ऑब्वियसली उनके जो प्रोफेशनल सेटअप्स हैं, वो फिर हमें किस तरह से जो है वो उसका बेनिफिट होगा, क्या उनके प्लेयर्स से मिल सकेंगे हमारे प्लेयर्स, क्या कोचिंग मिल सकेगी, और वो जो पूरा एक एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन या वो जो स्किल्स हैं, यू थिंक इज़ पॉसिबल कि हमें फ़ायदा क्या होगा या हमारे प्लेयर्स को इस एसोसिएशन का? तो बेसिकली नंबर 1 चीज़ टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है, जिसमें इन्होंने खुद कहा है हम ये चाहते हैं हम आपके कोचेस हम भी ट्रेन करें।
ये हो सकता है कि हम अपने कोचेस भी भेजें, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन किस तरह कोविड के इश्यूज़ होते हैं। अगर वो नहीं भी आ सके तो वो ऑनलाइन भी कर सकेंगे, ये चीज़ है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें ऑनलाइन, नॉट ऑनलाइन एज इन असिस्टेंस, ये क्लब्स देंगे। तो दूसरी चीज़ क्या होगी कि हम एक चीज़ ला रहे हैं, इंस्टैट एक सॉफ्टवेयर है कि बेसिकली उसमें क्या होता है कि हर प्लेयर के फिर डिटेल चले जाते हैं उसमें। तो वो जब डिटेल्स में चले जाते हैं तो वो एक ग्लोबल, एक वो पूरा फैमिली ऑफ फुटबॉल के, जिसमें रोनाल्डो, आपके मेसी, एवरीबॉडी इज़ ऑन इंस्टैट। ठीक है। तो कल जाके अगर इनको आगे जाके बाहर मुल्क में खेलने, तो अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलेंगे, ठीक है, मगर देयर आर अदर कंट्रीज जहाँ पे हमारे प्लेयर्स जाके खेल सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ आपको बताते चले, बात ये है कि जब तक हम इन प्लेयर्स, इन ऑफिशियल्स, इनकी एक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं बनाते तो ये कभी आगे नहीं जाएंगे। तो हमने क्या रखा है, हमने रखा है कि पहला सिस्टम हमारा होगा इमर्जिंग प्लेयर्स बेसिकली होगा, हर सिटी में इनके ट्रायल्स होंगे। एक TSG ग्रुप होता है जिसको कहते हैं टेक्निकल स्टडी ग्रुप होगा, जो इन प्लेयर्स को सिलेक्ट करेगा। तो हमने ये कहा है कि उसमें से 7 प्लेयर्स निकलेंगे हर उसमें से ग्रुप में से 14 प्लेयर्स हम बेसिकली निकालेंगे कैंप के लिए, 7 प्लेयर्स जो उसको हम फाइनल करेंगे। उस 7 प्लेयर्स को हम $3000 एक सीज़न में इनको सैलरी दी जाएगी। राइट, ये इमर्जिंग प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ हर प्लेयर विल बी कनेक्टेड थ्रू अ सिस्टम, उनके पास एक ID होगा। ठीक है। अब हमने सोचा यार ये जो प्लेयर्स है इनको बनाने वाला कौन होता है, इनका क्लब होता है। ठीक है। तो हमने ये कहा कि ये आगे जब प्लेयर्स आगे जाएंगे, जो भी रेवेन्यूज इनके प्लेयर के आएगा उसमें 10% हम क्लब को देंगे। ताकि क्लब को तो कोई फाइनेंस मॉडल है ही नहीं है ना, बाकी इन द स्टार्ट है ही नहीं कुछ। अब गरीब क्लब से आप बाकी कराची को देख लो, 600 क्लब है कराची में, उनको कहाँ से फाइनेंस मिलता है, खुद ही करते ना। तो हर इमर्जिंग प्लेयर विल बी कनेक्टेड टू देयर क्लब। इनको आगे जाके और देखेंगे हम, हमारी ख्वाहिश क्या है कि आगे जाके ये प्लेयर्स बाहर जाके खेले। तो ऑब्वियसली अगर जाके बाहर जाके खेल तो एक अच्छा ट्रांसफ़र फी मिल जाता है और वो पैसे क्लब को मिल रहे हैं, तो वो एक चांस है ना क्लब को आगे जाने का। उसके बाद हमारे आते डिपार्टमेंट के प्लेयर्स हैं। ठीक है, वो हर टीम में 4 होंगे। तो उससे ये होगा बेसिकली उनको हम सैलरीज देंगे $7000 फॉर 1 सीज़न। ठीक है। जो डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान प्रीमियर लीग में खेल है, जो चैलेंज कप में ले रहे हैं, पैसे कुछ बेहतर है, समझते हैं कि प्लेयर्स के कुछ पैसे बढ़ सकते हैं, बढ़ाने चाहिए, या अभी थोड़े नहीं दिस इज आए। देखो मैं तो खुद 12-14 साल से पाकिस्तान फुटबॉल में काम कर रहा हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था कि इलेक्ट्रिक, उस वक्त की सैलरी था $15000 एंड मैंने उस वक्त पे ब्रेक किया था रिकॉर्ड, जिसमें मैंने ईसा खान को $50000 ऑफर किया था। और मैंने जो फैसिलिटीज़ दी थी उस वक्त के इलेक्ट्रिक किसी के पास था ही नहीं। तो व्हाट हैपेंड वाज हर प्लेयर मुझे इसलिए थैंक यू किया था बिकॉज जब मैंने सैलरीज बढ़ाई, पूरा फुटबॉल सिस्टम को सैलरीज बढ़ाना पड़ा। ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड कि सैलरी सिस्टम क्या होना चाहिए प्लेयर का। मुझे पता प्लेयर की सैलरीज इतने है ही नहीं। मैं बात करूँ, दिस इज द मनी दे आर अर्निंग इन 1 मंथ। ठीक है। ये तो पूरे साल में इतना पैसे नहीं कमाते। फिर आपके आते हैं नेशनल टीम प्लेयर्स। नेशनल टीम प्लेयर्स में हमको $10,000 देंगे एक सीज़न का। 1 सीजन इज अबाउट 5 वीक्स। ठीक है। तो साल में इतना पैसे नहीं कमाते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई बेसिक अगर आपने एक चीज़ को इम्प्रूव करना है तो यू नीड टू ब्रिंग इन फॉरेन पीपल। ठीक है। जब मैं लीग जीता था 2014-15 में, 2 प्लेयर्स को मैं लेके आया था नाइजीरिया से। ठीक है। तो इट हेल्प लिफ्ट द लीग, और एक थोड़ा सा एक वो लोग के इंटरेस्ट हो जाता है ना कि यार इट्स समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग। सो वो हम लेके आएंगे मे फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, फ्रॉम नाइजीरिया, फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज 3। इनिशियली जो आपका, बल्कि पहला सवाल जो बनता है मेरे ख्याल में, वो लोग भी जानना चाहेंगे। देव, आपने सब कुछ बताया, बट when this league going to happen, ये होगी कब, लॉन्च कब कर रहे हैं? We are looking sometime early next year, but we are not going to announce the dates right now. We will be announcing the dates very shortly, but there's not a long time to wait for this. आप प्रॉमिस कर रहे हैं ना? नहीं कराएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, absolutely not. प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे विद अस। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदेद। लोग जो सोच रहे हैं, मैं वही यहाँ पे आज जानना चाहूँगा। उसमें एक सवाल ये भी कि चूँकि पाकिस्तान, अब नहीं इस बात पे हम खुश हों या रोएं कि हम सब कुछ पहले ही लुटा चुके हैं, अब फीफा ने हमें पहले सस्पेंड किया है, तो अब वो क्या करेंगे हमारे साथ? कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा इंटरनल मामला है, हमारी लीग है, हम इसको जैसे मर्जी कराएं। बट आप समझते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई हर्डल तो क्रिएट नहीं होगी? मे बी बिकॉज यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कमेटी भी है, एक और ग्रुप भी है, कुछ लीगल मामला भी चल रहे थे। तो देव, आई एम श्योर कि इस पर होमवर्क हुआ होगा और इस तरह की कोई प्रॉब्लम हमें ना फेस करनी पड़े, बिकॉज इन दी एंड खिलाड़ियों को फ़ायदा हो रहा है। तो आई थिंक ठीक है, फिर ये लीग या कोई भी एक्टिविटी खिलाड़ी के लिए अगर अच्छी है तो वो ज़रूर होनी चाहिए।
देखो इसका बेसिकली ये है कि एनी लीग जो पाकिस्तान डोमेस्टिकली होता है उसमें फीफा AFC के रिकग्निशन की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, मैंने 2010 में भी इंटरसिटी लीग किया था, उसमें कोई फीफा का रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली होता ये है कि आपका पाकिस्तान प्रीमियर लीग वो वाहिद टूर्नामेंट होता है जो रिकग्नाइज होता है फीफा AFC। इसकी वजह ये है कि उसकी चैम्पियन जाता है प्री AFC क्वालिफाइज खेलने के लिए, जो टीम में लेके गया था 2015 में। ठीक है, उसकी फंडिंग देती है फीफा AFC। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बेसिकली, अब क्या सूरत हाल ये है, बिकॉज मैं खुद मलेशिया गया हुआ था AFC की क्लब लाइसेंसिंग मीटिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई क्लब या डिपार्टमेंट मीट नहीं करती है AFC की क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया को, तो इसके वजह से पाकिस्तान प्रीमियर लीग के भी चैंपियन वो भी अब नहीं जा सकता। अगर आपने खुद भी देख लिया, क्रिकेट में भी जो है BCCI ने ICC को वो किया, ICC ने जवाब क्या दिया, डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, हम इसमें ताल्लुक नहीं रख सकते। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था प्लेयर्स के बारे में, तो इसके बाद एक प्लेयर होगा जो उसको हम कहते हैं मार्की प्लेयर। मार्की प्लेयर वुड बी समवन लाइक गुटी और अपना विलियम गैलस, मे बी निकोलस एनेल्का, एक प्लेयर जिसको हम चाह रहे एक प्लेयर कम कोच हो। ठीक है, वो दैट विल बी समवन maybe from ex-Manchester United, ex-Liverpool, ex-Arsenal, ex-Liverpool। तो वो जो प्लेयर होगा he will be the captain of the team and he will be the kind of like a coach as well। ताकि हम ये चाहते हैं कि जो बाकी हमारे जो स्टाफ हो वो हम सब पाकिस्तानी हो, तो जो असिस्टेंट कोच हमारे होंगे, हमारे फिजियोस भी हम ट्रेन कराएंगे बाहर से, कि वो फिर ट्रेन करें, ऐसे एक ट्रेन द ट्रेन मॉडल, राइट। तो आगे जाके होना ये चाहिए 2-3 साल के बाद हमें इन फॉरेन कोचेस की ज़रूरत नहीं पड़े, हम खुद अपने आप को ट्रेन कर चुके होंगे, लीग को हम इस्टेब्लिश कर चुके होंगे कि हमारे प्लेयर को आगे जाके उनको बाहर जाके खेलना चाहिए। ठीक है, अब फ्रेंचाइज की आपने बात की और आपने बता तो दिया जो स्पॉन्सर्स वगैरह हैं, बट फ्रेंचाइज मॉडल के हवाले से कुछ आपकी पेनिट्रेशन हुई, कैसा रिस्पांस मिला? चूँकि क्रिकेट के अंदर तो हमारी जो पाकिस्तान सुपर लीग है या कश्मीर प्रीमियर लीग, अच्छी बात है कि 2 लीग स्टैब्लिश हैं, लीग कल्चर आना चाहिए, और हम यही बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम्स में कि खुदा करके कोई एक जो है वो लीग कोई और खेल में आ जाए। तो ग्लैड टू नो कि फुटबॉल इज़ हैपनिंग इन द सेम डायरेक्शन। बट कैसा रिस्पांस है देव? मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है। दूसरा एक कंसर्न जो कि मैं चाहता हूँ लोगों को जो कि क्लैरिटी हो जाए, अब पता नहीं खुशी की बात तो वो होगी कि जब सस्पेंशन लिफ्ट होती है, बट फिर देव ये लीग कहाँ स्टैंड करेगी, इसके लिए आपका एक कहते हैं ना थॉट प्रोसेस आपके पास मौजूद है? देखो, when we talk about the league, हम क्या कहते हैं, पहली बात it has nothing to do with FIFA AFC, तो उसका मुझे कोई वो इशू नहीं है। मगर हम ये चाहते हैं कि फीफा का ऑब्जेक्टिव क्या है ग्लोबली। फीफा का ऑब्जेक्टिव ये है फॉर पीपल टू प्ले फुटबॉल। बिल्कुल ठीक है, वही तो कर रहे हैं हम लोग। तो हम ये चाहते हैं कि फीफा देखे यार एक अच्छी चीज़ इनिशिएटिव हो रही है जो पहले पाकिस्तान में हुए नहीं, उसको देखते हुए दे शुड थिंक एज टू आगे पाकिस्तान के क्या फ्यूचर होना चाहिए। बिकॉज अगर आप माजी में देखें, माजी में तो अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम एक अच्छा काम करना चाह रहे हैं जिसमें पूरा पाकिस्तान के लोगों को, प्लेयर्स सबको फ़ायदा हो। तो एंड ऑफ द फीफा AFC शुड बी थिंकिंग कि यार वी आर डूइंग समथिंग गुड फॉर फुटबॉल। वो तो अच्छा सोचेंगे। आई होप कि हमारी जो अभी फ्यूचर की बात करूँ, जो PFF हो वो भी अच्छा सोचे कुछ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, जब अच्छे इनिशिएटिव्स होंगे क्यों नहीं अच्छे सोचेंगे लोग। ठीक है ज़ेर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आपकी जो प्रोग्राम है, आपकी जो जेन में चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करने में आप कामयाब रहें। आप भी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज चलें अच्छी बात है कि पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर अब खेल की बात हो रही है। पहले खेल फेडरेशन के आपस में हो रहा था और फाइनली हम फुटबॉल फील्ड की जाने बढ़ रहे हैं। सो देव उनकी टीम ने बातें बहुत अच्छी की। आई विश एंड प्रे कि ये बातें इंप्लीमेंट हो जाएं और अगले साल जैसे देव ने प्रॉमिस किया हम एक अच्छी फुटबॉल लीग को होता हुआ देखें, जिससे पाकिस्तान के फुटबॉलर्स को फाइनेंशियली और खेलने के हवाले से मौके मिलेंगे। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए आप देख सकते हैं। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।